علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ شدت تشنگی کم کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اچھا سا کمنٹ کیجیے گا۔ سوشل گیدرنگ پر مشتمل یہ لانچ پارٹی بہت بڑے پیمانے پر ہوٹل میں رکھی گئی تھی، جہاں ہر عہدے کے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے، اور یہ لانچ ارزال پاشا کے ملائیشیا والے پارٹنر نے رکھا تھا۔ یہ لنچ ارزال پاشا کے ملائیشیا والے پارٹنر نے رکھا تھا۔ اس سب میں بس ایک بندہ موجود نہیں تھا، اور وہ تھا راؤ شمید۔ میڈیا والے وہاں موجود تھے جن کو بلایا گیا تھا۔ یشلا رائل بلو کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، کندھے پر کالی شال اوڑھے، سر پر دوپٹہ لیے۔ وہ بڑے مان کے ساتھ ارزال پاشا کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے سب سے مل رہی تھی۔ یہی عزت اور مان تو ارزال پاشا نے اسے دیا تھا، لیکن وہ بھی بے خبر تھا اس سب سے جو بھی ہونے والا تھا۔ لنچ میں آئے لوگ ایک دوسرے سے مسکرا کر مل رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے الجھے مسئلوں کا حل بھی نکال رہے تھے۔ سیاسی پارٹیوں اور لنچ میں ڈنر میں ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، کوئی کھانے کی ٹیبل پر بوفے سسٹم کی طرف بڑھ رہا تھا تو کوئی کونے میں کھڑے ملکی حالات پر اپنے تبصرے دے رہا تھا۔ جب سبھی کے موبائل فون ایک ہی وقت پر کچھ پیغامات رسیو ہوئے اور سب اپنے اپنے موبائل فون کو دیکھتے حیرت سے کبھی میر ارزال پاشا کو دیکھ رہے تھے تو کبھی یشلا شاہ کو۔ اس سے پہلے ارزال پاشا سب کی طرف متوجہ ہوتا جو منسٹر آف ہیلتھ سے بات کر رہا تھا، اسی کی بیوی یشلا کی طرف پڑی تھی، جو سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ مسٹر پاشا، آپ نے، میرا مطلب یہ آپ ہیں۔ منسٹر ہیلتھ کی بیوی نے آ کر جسے یشلا کو تصویر دکھائی، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس سے وہ بچ رہی تھی وہ اسے بھول گئی تھی، وہ ماضی اس کے سامنے آ گیا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یشلا الٹے پاؤں باہر کو بھاگی تھی، وہیں ارزال پاشا کی نظر اس پر پڑی۔ یشلا بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، اور وہ پریشانی میں اس کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ منسٹر کی بیوی نے اسے آواز دی۔ مسٹر پاشا، آپ کو پہلے ہی دیکھنا چاہیے۔ اس کی آواز کو اگنور کرتے ارزال پاشا تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب جا رہا تھا، جب منسٹر کی بیوی، جو تقریباً تہمینہ بیگم کی عمر کی تھی، ارزال پاشا کے راستے میں آ گئی۔ ارزال، تم میرے بیٹے جیسے ہو، میری بات سنو اور پھر اپنے ارد گرد دیکھو۔ اس کے بعد پر ارزال پاشا نے اپنے چاروں طرف دیکھا، جہاں ہر کوئی ارزال پاشا کی طرف دیکھ دیکھ کر باتیں کرا تھا۔ یہ دیکھو، موبائل کو ارزال کی طرف کرتے منسٹر کی بیوی خاموش ہو گئی تھی، اور وہیں ارزال پاشا کی تو جیسے جسم سے روح ہی نکل گئی تھی۔ چہرے کا رنگ پیلے سے سرخ میں پڑ گیا تھا، گردن کی رگیں پھول گئی تھی، وہ کسی کو مارنے یا خود مر جانے کے در پر تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ غصے کی وجہ سے وہ سمجھنے سے بے قاصر تھا۔ اب جاؤ باہر، کیونکہ تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے۔ باہر میڈیا اسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اور ہاں، ایک بات، اپنی بیوی پر یقین رکھنا۔ یہ سچ نہیں ہے، میں بھی ایسے ہی ایک برے وقت سے گزرے ہوں، اور میرا گھر برباد ہو گیا تھا، لیکن تم اپنی بیوی کو مت چھوڑنا۔ منسٹر کی بیوی کی باتیں تھیں، اور ارزال پاشا کے دماغ پر چھایا غصہ آہستہ آہستہ دھل رہا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا یہ کس کا وار ہے، لیکن کوئی اس حد تک گر سکتا ہے، اس کی امید ارزال پاشا کو نہیں تھی۔ ارزال پاشا کوئی جواب دیے بغیر یشلا کی طرف چلا گیا تھا۔ پورے ہال میں یشلا کو وہ ڈھونڈ چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ ہوٹل کے باہر میڈیا کا رش پڑ رہا تھا، اور میڈیا جسے بلایا ہی نہیں گیا تھا، یہ لوگ یہاں کہاں سے آ گئے تھے، اور جو میڈیا کے لوگ اندر تھے انہوں نے لائیو کوریج بند کر دی تھی۔ یشلا ارزال پاشا نے پریشانی تب ختم ہوئی جب اس نے یشلا کو ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر کرسیوں کے پیچھے کونے میں چھپ کر بیٹھی آنسو بہاتے دیکھا تھا، اور یہی دیکھ کر ارزال پاشا کا دل ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا، لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا، یشلا کے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اسے یشلا کا حوصلہ بننا تھا۔ ایک پاؤں کے بل بیٹھتے دوسرے گھٹنے کو زمین پر ٹکاتے ارزال پاشا نے یشلا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جو اپنے دونوں بازو میں خود کو سمیٹے ٹانگوں میں سر چھپائے رو رہی تھی۔ ارزال پاشا کے لمس کو محسوس کرتے تھے سر اٹھایا تھا، آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، اور آنکھیں دبا کے بھیک مانگ رہی تھی۔ ارزال، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، آپ میرا یقین کریں۔ یشلا کی ہچکی بندی ہوئی تھی، اسے تو خبر نہیں تھی کہ جب وہ اغوا ہوئی تو اس کے نیم بے ہوشی کے عالم میں کیا کیا ہوا تھا۔ اسے تو اس بات کا یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایسی حالت سے راؤ شمید اتنی گھٹیا حرکت کر کے کسی کے ساتھ اس کی تصویر بنا سکتا ہے، لیکن وہ ابھی جانتی نہیں تھی کہ یہ حرکت راؤ شمید نے نہیں، راؤ شہروز نے کی تھی، اور راؤ شہروز کے مرنے کے بعد راؤ شمید نے یہ ساری تصاویر ایک USB میں راؤ شہروز کے سامان سے ملی تھی۔ اس وقت راؤ شمید کو اپنے سوتیلے بھائی پر غصہ بہت آیا تھا، لیکن وہ اس سب کو ضائع نہیں کر سکا، اور آج وہی تصاویر اور اپنی جلن اور بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لیکن دنیا میں ایک واحد وجود یشلا کا تھا جو وہ جانتی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ پاک ہے، لیکن اس دنیا میں کون اس بات کا اعتبار کرتا؟ جب عورت کی ذات پر، اس کے کردار پر داغ لگ جائے تو وہ چاہے مر کر بھی یقین دلائے کہ وہ پاک ہے، یہ دنیا تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور یہاں تو سامنے بس اس کی دنیا ارزال پاشا تھی، اس کا یقین ہی اس کے لیے بہت کچھ تھا۔ اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تو کیوں سب سے چھپ رہی ہیں؟ کیوں لوگوں کی بات کرنے کا موقع دے رہی ہیں؟
अरसाल पाशा की आवाज़ हर किस्म के तासुरात से पाक थी, बस था कुछ तो वो संजीदगी थी और कुछ नहीं। मेरी एक बात आप ज़हन नशीन कर ली यशला, आप जितना अपने माजी से भागोगी वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज इसे चुप कर बैठोगी तो कल फिर कोई उठकर आपके किरदार को दागदार कर देगा। अपने माजी का सामना करो यशला, इसके सामने डट जाओगी तो आपका हाल और बेहतर और मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपकी परवाह है इसलिए। मीर अरसाल पाशा की वही गंभीर आवाज़ जो अब इसके कानों में सरायत कर गई थी। इसके मुंह से वो अब भी अपने लिए परवाह का लफ्ज़ सुनकर यशला चौंकी थी। जो मीडिया से अपना मुंह छुपाए किसी कोने में खुद को महफूज करके बैठी, उसे ना तो अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था, ना अपने कानों पर। वो उसकी तस्वीर देखकर भी इस पर यकीन कर रहा था। वो तस्वीर जो कोई भी कमजोर एतमाद वाला इंसान हो वो यकीन कर बैठे, और अब वो तो मुल्क का इतना बड़ा सियासी लीडर बन चुका था और इसके सामने घुटने टेक कर बैठा था। वो अभी तक ये यकीन नहीं कर पा रही थी इसने जो कुछ अरसाल पाशा के बारे में सुना था वो आज सच साबित हो गया था। वो शख्स जो औरत की इज्जत तो करता था लेकिन औरत को कभी खुद पर हावी नहीं होने देता था, आज उसे इस दुनिया की नफरत भरी बातों और नजरों से छुपाए बैठा था। अपने वजूद की दीवार बना इसका हौसला बन रहा था। चलो उठो और सामना करो इस सब का। मीर अरसाल पाशा ने जमीन से उठते हुए अपना हाथ यशला की तरफ किया था, जो अपने बाजू को खुद के गिर्द हिसार बनाए आंसू से बहती आंखों से कभी मीर अरसाल पाशा के हाथ को देख रही थी और कभी इसके चेहरे पर जहां इंतहा की संजीदगी और गुस्से से मिले जुले तासुरात थे। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या अरसाल? इन तस्वीर को देखकर तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। और आप यशला कहते हुए रुक गए थे। यशला में इतनी कमजोर एतमाद का मालिक नहीं हूं और ना ही मेरे नजदीक ये सब अहम है। अगर सारी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए और आपके किरदार पर बात करे तो तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आप पर यकीन करूंगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको आपके माजी के साथ कबूल किया है। मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन क्या कहता है, मुझे बस आपकी परवाह है। आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है और मुझे अपनी इज्जत पर बात करने वालों का मुंह तोड़ना अच्छे से आता है। और आपका मासी था और अब मैं आपका हाल और मुस्तकबिल हुई असला में, लेकिन मेरी हिम्मत भी आप। अगर आप यूँ छुप कर बैठ जाओगे तो सब ठीक होने की बजाय ख़राब हो जाएगा। अरसाल पाशा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए इशला की तरफ देखा जिसके आंसू रुक चुके थे। अब वो हैरत से अरसाल पाशा को देख रही थी। इसके सामने एक ऐसा शख्स था जो कमासी जानते हुए भी उसे शहजादी की तरह रखा हुआ था। तो आप मेरा साथ देंगी? अरसाल पाशा की बात पर अब यशला ने सर इस बात में हिलाते अपना हाथ अरसाल पाशा के हाथ में दिया था। थोड़ी देर बाद ही यशला अरसाल पाशा के दिए एतमाद के साथ बाहर तमाम रिपोर्टर्स के सामने खड़ी थी। आंखों में अब नमी की जगह यकीन था जो उसे अरसाल पाशा ने दिया था। मिस्टर पाशा, आज जो तस्वीर लीक हुई है आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर वो आपकी बीवी की है? रिपोर्टर्स ने राव शमीद की जबान बोलते हुए कहा जो उसे तनवीर ने कहा था। अरसाल पाशा ने इस रिपोर्टर को मार जाने वाली नजरों से देखा था और फिर सब रिपोर्टर्स पर नजर डाली जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए थे। पहली बात, मुझे हैरत हो रही है कि आप सबको तो किसी ने यहाँ बुलाया नहीं था, तो आप सब कैसे और किसके कहने पर आएंगे? लेकिन खैर, मुझे भी ये सब जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब तो और बहुत ही तफसील से दूंगा। और यहाँ ये सब लाइव रखिएगा। अरसाल पाशा ने इसी रिपोर्टर की तरफ इशारा करते कहा और अपनी बात जारी रखी। आज से 3 साल पहले यशला शाह को अगवा किया गया था, जो अब मेरी बीवी यशला अरसाल पाशा है, लेकिन तब नहीं थी। और ये मुझे कैसे पता चला वो भी बता देता हूँ। मेरे नाना सरदार मीर अकबर के ताल्लुकात यशला के वालिद से बहुत अच्छे थे और शायद ही कोई एक बंदा नहीं जानता। खैर, आगे चलते हैं। इनके अगवा होने के बाद मेरे वकील ने इनके अगवा की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाई थी। अब सब मालूम कर सकते हैं तब उसे एक हादसा बनाकर पेश करके इस केस को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जिसने अगवा किया था वो नहीं चाहता था कि पुलिस इस केस को देखे। लिहाजा केस बंद होने के बाद मैंने हर तरह से कोशिश करके यशला को इस तहखाने से निकाल लिया था जहाँ अगवा होने के बाद वो कैद थी। इसलिए वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं मुझे सब पता है। और हाँ, ये जो आप लोग तस्वीर की बात करें ये तो सब झूठ है। इतना तो मुझे पता है कि कोई मीर अरसाल पाशा को गिराने के लिए सब कर रहा है, क्योंकि जहाँ यशला का अगवा करके रखा गया वहाँ के पहरेदार बंदे ने कुछ पैसों की खातिर सब कुछ उगल दिया था, जो मेरे पास सबूत के तौर पर मौजूद है। अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है और मीर अरसाल पाशा की कोई इज्जत पर उंगली उठाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सबको कल ही सच्चाई का पता चल जाएगा। और हाँ, तुम अरसाल पाशा ने इसी रिपोर्टर की तरफ इशारा किया जो रोशनी की तरफ से स्पेशल भेजा गया था। तुम जाकर अपने मालिक को बता देना कि मैं नहीं जानता था कि वो इतना घटिया भी निकलेगा कि किसी औरत के कंधे का सहारा लेकर वार करेगा। उसे कहना कि जंग तुमने शुरू की थी और अब खत्म मैं करूंगा। अरसाल पाशा की सुर्ख होती आंखों को देखकर रिपोर्टर भी सहम गया था और देखते ही देखते सबके कैमरे नीचे हो गए तो जावेद इन सबको पीछे करते और अरसाल पाशा और यशला के गुजर जाने का रास्ता बना रहा था। गाड़ी में बैठते ही यशला ने अरसाल पाशा की तरफ देखा और आज वो वाकई इसके एक एक एहसान तले दब गई जो अरसाल पाशा नहीं चाहता था। क्या हुआ, भूख लगी? कुछ खाना है मेरी जान? अरसाल पाशा ने गर्दन मोड़कर जैसे यशला की तरफ देखा तो अपनी जानिब देखता पाकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर पहले का गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। नहीं, यशला ने नफी में सर हिलाते कहा।
اور ارزال پاشا نے اپنا ہاتھ یشلا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ہلکا سا دباؤ ڈالا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہوٹل سے نکلتے اور ارزال پاشا نے ایمرجنسی کو کال ملا دی، جہاں یشلا کی تصاویر تھی اور جس کے پاس تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کل صبح کا۔ ایک اور رات ڈھل رہی تھی اور اس رات کی صبح نے یشلا کو بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ بیڈ کے کونے پر سر جھکائے یشلا بیٹھی تھی جب ارزال پاشا کمرے میں داخل ہوا تھا اور تہمینہ بیگم کو ہر طرح کی تسلی دے کر آیا تھا، جو آج کے واقعے کو ٹی وی پر سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ارزال پاشا کی آواز پر یشلا نے سر اٹھا کر دیکھا اور گھڑی ہو گئی تھی، لیکن کچھ سوچتے اس کا سر پھر سے جھک گیا۔ یشلا، میں اس لیے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے سر کو میرے سامنے جھکا کر رکھیں، اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، میں چاہتا ہوں آپ میرے سامنے سر اٹھا کر بات کیا کریں۔ آپ اب اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا ہے، یہ سب میں نے صرف اپنے لیے کیا ہے کیونکہ آپ میری اپنی ہے، اور اس دنیا میں میری ماں کے بعد آپ وہ واحد ہیں جس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ارسال پاشا کے ہاتھوں میں یشلا کے ہاتھ تھے، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یشلا نے بغیر کوئی بات کے اپنا سر ارسال پاشا کی سینے سے لگا لیا تھا۔ آج وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، کچھ بھی نہیں، اور اب ارسال پاشا کے بہت سے کاموں سے کرنے باقی تھے، لیکن وہ یشلا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، کم سے کم آج رات تو نہیں۔ ایک نئی صبح طلوع ہوئی تھی، ویسے تو ہر صبح ایک طرح کی ہی طلوع ہوتی، لیکن آج کی صبح میں ایک تشنگی کی جنگ کا اختتام ہونا تھا۔ صبح صبح ٹی وی پر ارزال پاشا کی خبریں چل رہی تھی، کوئی ٹی وی چینل ارزال پاشا کے خلاف بول رہے تھے، کوئی اس کے حق میں، لیکن سارے ٹی وی چینلز پر ایک بات کامن تھی کہ کوئی بھی یشلا کی تصویر کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ بس سب کو سچ جاننا تھا جب صبح کے 10 بجے کی نیوز نے ہر طرف ہلچل مچا دی۔ سپریم کورٹ میں یشلا کے اغوا والے کیس کو لے کر ایک ثبوت پیش کر دیا گیا تھا جو روش حمید کے خلاف تھا، چاہے وہ یشلا کے والدین کا قتل تھا یا ماڈل ناز کے قتل کا۔ اور پھر سب سے بڑی بریکنگ نیوز، راؤ شہروز کے قتل کی چل پڑی تھی، اور کہیں کیس میں روش حمید مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ ثبوت ایسے تھے جو کوئی بھی ادارہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ جس قانون کو روش حمید اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا تھا، آج وہ بھی بے بس تھا۔ کورٹ نے روش حمید کے وارنٹ کا گرفتاری جاری کر دیے تھے۔ روش حمید کا باہر کے ملک جانے پر پابندی لگا دی تھی، ہر راستہ بند کر دیا گیا، لیکن پولیس کی کہیں بھی روش حمید نہیں ملا تھا۔ وہیں روش حمید نے ارزال پاشا کے رپورٹرز کے بیان کے بعد اسے اپنے سارے تعلقات کو استعمال کرنے کے بعد ناکام ہو کر راتوں رات غائب ہو گیا۔ اس کی اپنی چال اس پر الٹ گئی تھی۔ روش حمید کہاں تھا، کس کے پاس تھا، یہ بس تنویر جانتا تھا، اور تنویر خود غائب تھا۔ پسماندہ سے علاقے میں آدھے منہ کو کپڑے سے چھپاتے رات کے پہر تنویر چوروں کی طرح اس علاقے میں داخل ہوا، جہاں زیادہ تر افغانستان سے آئے لوگوں کی رہائش تھی۔ ایک چھوٹی جھونپڑی نما گھر جو ایک کمرے پر مشتمل تھا، جس کا لاک باہر سے لگایا گیا تھا تاکہ لوگوں دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تنویر نے دروازے کو لاک کھولتے ہی اندر قدم رکھا۔ سامنے بوسیدہ کرسی پر روش حمید غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملی کیا؟ تنویر کو دیکھتے ہی روش حمید اس پر بھڑک پڑا تھا۔ 3 پیس سوٹ پہنے وہ ایک جھونپڑی میں ایک بوسیدہ کرسی پر بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ تنویر اس کا کہیں کسی ہوٹل میں رہنے کا انتظام کرے گا، لیکن اس کے حصے میں بھی یہ جھونپڑی ہی تھی۔ شمیر صاحب، پولیس ہر جگہ چھاپے ماری، میں آپ کو کسی ہوٹل میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا، اس لیے مجھے یہی جگہ مناسب لگی۔ تنویر کی بات سن کر اس سے پہلے روش حمید کچھ کہتا تنویر بول پڑا، شمیر صاحب، ہر ایئرپورٹ پر پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے، بحری راستے میں سے بھی نہیں جا سکتے، اور وہ دراصل آپ کی ساری پراپرٹی بھی ضبط کر لی گئی، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس جھونپڑی کے۔ تنویر کی بات سن کر روش حمید کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ سب کچھ تو اس کے ہاتھ سے جا چکا تھا، اور یہ سب کچھ یشلا اور ارسال پاشا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب تک اس کے وفادار لوگوں میں سے تنویر ہی بچا تھا جو اس کا اب تک ساتھ دے رہا تھا۔ اس 5 فٹ کی لڑکی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں محبت برباد کر دیتی، بڑے بھائی نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی مجھے برباد کر دے گی، اور آج میں اسی کی وجہ سے اس حالت میں ہوں، اور وہ سچ میں برباد ہو چکا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ کھونے کو اور کچھ پانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ کیا کوئی راستہ باقی ہے جس سے میرا سب کچھ واپس آ جائے؟ میری پوزیشن، میری جائیداد، سب کچھ۔ روش حمید نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ایک امید سے تنویر کی طرف دیکھا۔ جی شمیر صاحب، ایک راستہ ہے، تنویر کے کہنے کی دیر تھی۔ روش حمید فوراً آگے بڑھا۔ تو چپ کیوں ہو، مجھے بتاؤ۔ شمیر صاحب، اگر مسٹر پاشا اپنے تمام تر کیسز کو واپس لے لیتا ہے اور ایک معافی نامہ جمع کروا دیتا ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر ایسا ممکن ہے، وہ بھی الیکشن سے پہلے۔ تنویر کی بات پر روش حمید کا قہقہ بلند ہوا تھا، ساتھ ہی اس کی رونے والی شکل بن گئی تھی۔ وہ کیا پاگل ہے جو ایسا کرے گا؟ روش حمید پاس رکھی کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے اپنے بیٹھنے کے آخری وسیلے کو بھی توڑ دیا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے روش حمید کمرے میں ادھر کا ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کا دماغ مختلف پلان بنا رہا تھا، اور ہر پلان آخر میں ناکامی کا شکار ہو جاتا، اور پھر اچانک ہی روش حمید کے قدم رک کر اس کی آنکھوں میں امید لیے تنویر کی طرف دیکھا، اور تنویر اپنے مالک کی آنکھوں کی بات سمجھ کر ایسی شکل بنائے کھڑا تھا جیسے کہہ رہا اپنے ساتھ کیوں میری بھی قبر کا انتظام کر رہے۔ کتنی دیر تک آ جاؤ گے تم لوگ؟ تہمینہ بیگم نے ارزال اور یشلا کی طرف دیکھتے کہا، جو بیبی کی شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ جب تک آپ کی بیٹی تھک نہیں جاتی ارزال پاشا،
इस हक में बिल्कुल भी नहीं था कि वो यशला को बाहर लेकर जाए, लेकिन इस दिन के वाक़े के बाद डॉक्टर ने यशला को माहौल बदलने का कहा था। इसलिए अरसाल पाशा को न चाहते हुए यशला के साथ शॉपिंग पर जाना पड़ रहा था। माँ जी देख ली, ये भी मुझ पर तंज कर रही है। यशला ने बुरा सा मुंह बनाया, जिस पर तहमीना बेगम ने अरसाल को घूरते हुए देखा। अब क्या मैं बोल नहीं सकता? हद है, अरसाल पाशा कहते हुए बाहर चला गया था। जाओ बेटी, जी भर कर शॉपिंग करना। तहमीना बेगम ने यशला के कंधे पर प्यार से थपकी दी और वो मुस्कुराते अरसाल के पास चली गई थी। जावेद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उनकी गाड़ी के पीछे एक सिक्योरिटी की गाड़ी साथ आ रही थी। राव शमीद को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा था। 3 दिन हो गए थे, इसलिए अरसाल पाशा को कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मॉल में आते ही जावेद भी इन दोनों के साथ पीछे पीछे चल रहा था, जिसकी आंखें चारों तरफ देख रही थी। दोपहर के निकले दोनों अब शाम होने वाली थी। यशला ने अपने आने वाले बच्चे के तकरीबन मॉल की हर बेबी शॉप से सामान खरीदा था। जावेद अब सारी शॉपिंग बैग पकड़े गाड़ी की तरफ आ रहा था और यशला हाथ में जूस का गिलास पकड़े छोटे छोटे सिप लेते हुए इर्द गिर्द देख रही थी। अरसाल पाशा ने आके बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला और यशला अंदर बैठ गई। मीर साईं, मिनिस्टर हेल्थ साहब को कॉल कर लें, इनकी सिक्योरिटी की। सेक्रेटरी की कॉल मुझे आई है। शायद आपने कॉल पिक नहीं की। जावेद ने सामान गाड़ी में रखते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहा। हामिरीन से आज मीटिंग थी, शाम में इसी सिलसिले में कॉल आ रही होगी। अरसाल पाशा ने कहते अपनी बास्केट की पॉकेट में मोबाइल निकालने के लिए हाथ रखा, तो वहाँ मोबाइल नहीं था। ओह एक मिनट जावेद, गाड़ी रोको, मुझे लगता है मैं अपने वॉलेट और मोबाइल कैश काउंटर पर भूल गया हूँ। अरसाल पाशा ने जावेद को गाड़ी रोकने कहा, जो वो स्टार्ट कर चुका था। आपकी इतनी याददाश्त कमजोर हो कि मुझे ही कहीं ना भूल जाए। यशला ने जूस का सिप लेते अपनी मुस्कुराहट होठों में दबाते कहा, आप अपने आप को मुझे भूलने देंगी तो मैं भूलूंगा ना। अभी की मिसाल ले ले, एक दो और शॉपिंग हुई तो मैं खुद को ही किसी शॉप पर भूल जाऊंगा। अरसाल पाशा की बात पर यशला ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए चेहरा विंडो की तरफ कर ली। वहीं अरसाल पाशा गाड़ी का दरवाजा खोलकर मॉल की तरफ चला गया था। जावेद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो रोजाना ही इन दोनों की खट्टी मीठी लड़ाई सुनकर इंजॉय करता था। अभी जावेद अपनी ही सोचों में गुम था कि जावेद के साथ वाली सीट की तरफ का दरवाजा खुला और किसी देव का कदामत शख्स ने आते ही जावेद पर पिस्टल तान दी थी। वहीं जावेद ने गर्दन मोड़कर पीछे यशला की तरफ देखा, जिसके मुंह पर हाथ रखे और कनपट्टी पर पिस्टल रखे एक और आदमी बैठा था। अपनी सिक्योरिटी वाली गाड़ी को कॉल करो और कहो कि वो पीछे ना आए। हमारे अगर ना कॉल की तो अभी इसी वक्त इस लड़की को बगैर अवैस किए मार देंगे। जावेद का तो रंग ही उड़ गया था। उसके पास गाड़ी में इस वक्त 3 पिस्टल मौजूद थी, एक इसकी कमर के पीछे, एक सीट के नीचे और तीसरी डैशबोर्ड के खाने में। अगर वो अकेला होता या अरसाल पाशा साथ होता तो वो कोई भी कदम उठा सकता था, लेकिन यहाँ बात यशला की थी और अरसाल के बच्चे की। जावेद ने कोई भी हरकत किए बगैर ही अपनी सिक्योरिटी गाड़ी को कॉल करके पीछे आने से रोक दिया था और फिर इस आदमी के कहने पर गाड़ी स्टार्ट करता हुआ इसके बताए हुए रास्ते की तरफ रवाना हो गया। सब कुछ बस मिनटों में ही हो गया था। अरसाल पाशा जैसे ही मॉल से अपनी वॉलेट और मोबाइल लेकर निकला, उसे जावेद वाली गाड़ी नजर आई। अलबत्ता उसके पीछे खड़ी सिक्योरिटी वाली गाड़ी अभी तक खड़ी थी, जिस पर टोटल 4 आदमी थे, 2 आगे और 2 पीछे बैठे थे। जावेद की गाड़ी इस एंगल पर खड़ी थी कि वहां बस जावेद गाड़ी में बैठा नजर आ रहा था। इसी बात का फायदा उठाते वो लोग गाड़ी में सवार हो गए थे। जावेद कहाँ है? अरसाल पाशा ने सिक्योरिटी वाली गाड़ी के ड्राइवर को कहा, जो अरसाल पाशा को अपने पास आता देखकर गाड़ी से बाहर निकल आया। मिस्टर पाशा, जावेद साहब की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं, इनकी गाड़ी के पीछे मत आए और आपको लेकर पुराने घर को ढूंढ ले, वही शॉपिंग का सामान मिल जाएगा आपको। ड्राइवर ने अरसाल पाशा को बताते हुए सर झुका लिया था और वहीं अरसाल पाशा को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था। इसने जल्दी से जावेद को कॉल मिलाई, लेकिन इसका नंबर बन जा रहा था। अरसाल पाशा ने जावेद के दूसरे नंबर पर कॉल मिलाई, वो भी बन जा रहा था, पर यशला के भी वो भी बंद था। अरसाल पाशा की तो एक मिनट में दुनिया उजड़ गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। आखिर यशला की बात मानकर उसे बाहर क्यों लाया था और फिर इनको छोड़कर मॉल वापस क्यों गया था। एक लम्हा को उसे लगा कि वो 4 साल पहले पीछे पहुंच गया था, जहाँ हमेशा रोशमीत इससे बाजी ले जाता था, और आज भी इसके खिलाफ इतना कुछ करके भी वो उसकी मोहब्बत इसके वफादार दोस्त को ले गया था। मिस्टर पाशा, क्या हमें बताएं? एक सिक्योरिटी के आदमी ने बाहर निकलते हुए जैसे कहा। रजाल पाशा होश की दुनिया में वापस आया। यशला को जावेद को अगवा कर लिया गया। ये सब राव शमीत नहीं किया है। जावेद का पुराने घर का कहना और शॉपिंग का कहना, मतलब वो लोग राव शमीत के पास जा रहे हैं और हमें वहीं जाना होगा। अरसाल पाशा के कहने की देर थी, सिक्योरिटी की गाड़ी अलर्ट हो गई थी। अरसाल पाशा के साथ सिक्योरिटी के लोगों ने राव शमीत के हर ठिकाने पर जाकर देख लिया, जो प्रॉपर्टी सब थी वहां भी, लेकिन यशला का और जावेद का कहीं पता नहीं था। मॉल के बाहर के कैमरों की रिकॉर्डिंग अरसाल पाशा ने हासिल कर ली थी। वो पुलिस के और एजेंसी के लोगों के साथ बैठा वो रिकॉर्डिंग देख रहा था, जहाँ वाज़ेह तौर पर नजर आता तो नकाबपोश लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी थोड़ी ही देर बाद चली गई थी। मिस्टर पाशा, हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा और ना ही ये पता चल रहा है कि सब राव शमीत ने किया है, क्योंकि अभी तक इसका भी कोई पता नहीं है। इस वीडियो से हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। हाँ, अलबत्ता वो अगर अपनी गाड़ी में लेकर जाते तो हम इस गाड़ी के नंबर से उसे ट्रेस कर सकते थे, लेकिन अब भी वो मुमकिन नहीं है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करें। अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है तो खुद से एक्शन मत लीजिएगा। आपकी मिसेज है, इनके पास इमरजेंसी
एजेंसी के सरबराह ने बहुत तामुल से अज़ाल पाशा को कहा। जो बस सुन सकता था उसका दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। आखिर तुम निकले ही घटिया, बस इसी की कसर बाकी थी, वो भी तुमने पूरी करके साबित कर दिया कि तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। यशला के दोनों हाथ कुर्सी के हैंडल से बंधे हुए थे और वो दोनों पाँव को आपस में बांधा हुआ तो कुर्सी के साथ बंधे रहने के बावजूद यशला को मजामत नहीं कर रही थी और यह तमाद उसे अरजाल पाशा नहीं दिया था। अब पहले की तरह रोने धोने और जान बचाने की भीख नहीं मांग रही थी। तनवीर ज्यादा जोर से तो नहीं बांधा मेरी जान को, वो क्या है ना बहुत नाजुक है, राव शमीद ने कहते हुए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। थ्री पीस सूट से कोट को उतार कर अब इसने शर्ट की आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। बकवास बंद करो अपनी इस गंदी जबान से। मेरे बारे में एक लफ्ज भी निकला तो जबान खींच लूंगी। यशला के चिल्लाने पर राव शमीद ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। उफ, कितना ऊंचा बोलती हो तुम। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा और ना ही मुझे अब तुम्हें कोई कर्ज है। वो एक वक्त था जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब डूब कर मर रहा था, लेकिन जब मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, मेरी पोजीशन, मेरी पार्टी, तो मुझे तब हो रहा है कि मैं तो बहुत घाटे का सौदा कर चुका था और सारा नुकसान ही मुझे हुआ। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी ही वजह से ये नुकसान हुआ है, तो क्यों ना तुम ही इस नुकसान को पूरा करो। राव शमीद ने थोड़ा झुककर यशला की तरफ देखा, जो खून बरसाती आंखों से उसे देख रही थी। मैं कुछ नहीं करूंगी, समझ आई, और मुझे बताओ जावेद भाई कहाँ है? यशला ने राव शमीद से नजरें हटाते इधर उधर देखा। ओहो, जावेद भाई बड़े रिश्ते बना लिए, तुम इसकी फिक्र मत करो। वो मेरे बड़े भाई के साथ जहन्नुम में काफी इंजॉय कर रहा हो। राव शमीद की बात सुनकर यशला के हाथों में हरकत आई थी। कमीने इंसान कितने जालिम हो, लोगों को मारते जरा एहसास नहीं होता तुम्हें, जरा तकलीफ नहीं होती तुम्हें, खौफ नहीं आता? यशला आपकी बात चीख पड़ी थी और राव शमीद का कहका बुलंद हुआ था। जब मैं हूं ही कमीना तो फिर क्या खौफ, क्या डर और क्या तकलीफ। और हाँ, तुम कुछ ज्यादा मोटी नहीं होगी, राव शमीद ने एक भरपूर निगाह यशला पर डालते कहा, जो प्रेगनेंसी के बाद थोड़ी मोटी हो गई थी। तो फिर तुम पर तुम्हारी गंदी सोच और नजर पर कपड़े पड़े कीड़े पड़ेंगे तुम्हें कब्र में, राव शमीद कीड़े। यशला को अब अपना आप राव शमीद की नजरों में महफूज नहीं लग रहा था। तनवीर के बंदों ने जब अपनी गाड़ी से पुराने इलाके में रोकी तो जावेद के हाथ पैर सुन पड़ गए थे। इस इलाके के बारे में तो कभी अरजाल पाशा सोच भी नहीं सकता था, तो राव शमीद के अड्डों पर ही चेक करवा सकता है। देखो तुम लोग गलत करे हो, अगर तुमने हमें कोई नुकसान पहुंचा तो मीर साई हम सब तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। जावेद ने दोनों आदमियों की तरफ देखा और पियशला की तरफ, जो बेहोश हो चुकी थी। हमसे क्या मतलब, हम तो हमारे तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, हमें लड़की को पहुंचाना और तुम्हें मारने का हुक्म है, बस जावेद के साथ बैठे आदमी ने कहा और अपने दूसरे साथी को यशला को अंदर ले जाने का इशारा दिया। रुको, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते, जावेद ने कहते साथ अपनी कमर के पीछे से पिस्टल निकालने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया। साथ बैठे आदमी ने पिस्टल के हमरा जावेद के सर पर दे मारा और वहीं अपने होशो हवास से बेगाना हो गया। शेषला राव शमीद के पास पहुंच चुकी थी और जावेद को राव शमीद के हुक्म पर मारकर मारगला के पहाड़ों के करीब ही फेंक दिया था। वक्त गुजर रहा था, एक तरफ यशला का कहीं पता नहीं चल रहा था, दूसरी तरफ जावेद की मौत का सुनकर यशला का एतमाद टकवा आ गया था। रात के 11 बज रहे थे और पुलिस अपना काम कर रही थी। हर तरफ छापे पड़ रहे थे, पुलिस की हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही थी। वही मारगला पहाड़ों के करीब जावेद के मुर्दा वजूद में हरकत हुई थी। पेट में 2 गोलियां खाकर भी वो हिम्मत नहीं हारा था। बेहोशी का गलबा उतरा तो इसने पेट की नसें दौड़ाकर देखा और 1 मिनट में जान गया कि वो कहाँ है। अपने पेट पर अपना कोट उतार कर बांधते हुए खून को बहने से रोका था। जावेद ने बाहर सड़क तक का रास्ता कैसे पूरा किया, ये वही जानता था। तकलीफ से, दर्द से भरा एक एक कदम उसे मौत का एहसास दिला रहा था। खून बहकर इसके पाँव तक को गीला कर रहा था। जब इसने दूर से आती गाड़ी को इशारा किया और अगले लम्हे वो गाड़ी में बैठते ही अरजाल पाशा के घर की तरफ रवाना हो गया। वहीं अरजाल पाशा गाड़ी से उतरते बोझल कदमों के साथ घर के अंदर दरवाजे तक जा रहा था और अपने बंदों के साथ वो हर जगह देखा था, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला था। जब उसे अपने पीछे गाड़ी की लाइट नजर आई, हरजाल पाशा ने फौरन मुड़कर देखा तो वहां कोई 40 साल की लेडी गार्ड से निकल रही थी और निकलते ही इसने पिछली सीट का दरवाजा खोला। वहीं हरजाल पाशा के कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाए और अगले पल वो साकित रह गया। जावेद खून में लथपथ गाड़ी से उतरा। जावेद हरजाल पाशा की ऊंची आवाज पर वहां से खड़ी सिक्योरिटी इनकी तरफ आई थी। एम्बुलेंस को कॉल करो, हरजाल पाशा ने चीखते हुए कहा। जावेद को सहारा दिया था। मैं उसे अस्पताल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जा रहा था। इस लेडी ने वजाहत देना जरूरी समझा, लेकिन अरजाल पाशा को भी किसी की वजाहत की जरूरत नहीं थी। मिस साई मिस यशला को बचा ले, वो राव शमीद के पास थे, वो कोई पुराने इलाके में है। जावेद इससे ज्यादा बोल नहीं पाया और वहीं अरजाल पाशा के कंधे पर इसका सर ढलक गया। थोड़ी देर बाद ही एम्बुलेंस आ गई थी और जावेद को अस्पताल ले गई थी। अस्पताल जाते जाते जावेद अपनी वफादारी निभा गया था और अरजाल पाशा को यकीन था कि उसे बचा लेगा, वो जिंदा रहेगा। वहीं घर में तहमीना बेगम तस्बीह पकड़ी यशला और जावेद के लिए दुआ कर रही थी। गांव में अभी ये खबर नहीं पहुंची थी और ना ही अरजाल पाशा ने जरूरी समझा था। वो लोग तो पहले ही जिंदगी से हारे जिंदगी गुजार रहे थे, अब उन्हें मजीद क्यों परेशान करना। हरजाल पाशा ने घर आते ही तहमीना बेगम को जावेद के बारे में बताकर तसल्ली दी और साथ ही एजेंसी के लीडर को कॉल करने ही वाला था कि हरजाल पाशा के नंबर पर प्राइवेट नंबर से कॉल आना शुरू हो गई।
और वो एक सेकंड में जान के ये कौन हो सकता है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ राव शमीद की आवाज़ सुनती है, रज़ाल पाशा का फ़ोन कॉल उठाता। बोलो कहाँ आना है। राव शमीद की बात सुनकर रज़ाल पाशा ने फ़कत इतना कहा, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमने अगर मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को कुछ किया तो तुम्हें मैं जिंदा ज़मीन में दरगोर कर दूंगा। अरसाल पाशा की बात सुनकर दूसरी तरफ राव शमीद ने बगैर कुछ कहे कॉल काट दी थी। वहीं अरसाल पाशा ने सोच लिया कि अब इसके साथ क्या करना। वाह वाह क्या बात है, पाशा साहब तो अब बाप बनने वाले, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। अब मैं इससे जो कहूंगा वो अपने बच्चे के लिए सब कर देगा, क्योंकि वो खुद बाप के बगैर बड़ा हुआ है ना, इसलिए अपनी औलाद बहुत अजीज होगी। राव शमीद अरसाल की कॉल बंद होने के बाद अब फिर यशला के सामने बैठ के और अब उसे सर से पैर तक देख रहा था। यशला यूं ही खामोश थी और राव शमीद को उसकी खामोशी चुभ रही थी। लगता है तुम अपने मिजाज खुदा को याद कर रही हो। फिक्र मत करो, वही ही आता होगा, मेरा काम मुकम्मल होने दो, फिर मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। हम इतना भी जालिम तो नहीं होना। राव शमीद की बात पर यशला चौंकी नहीं थी, बल्कि इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई थी। वो जान चुकी थी कि अगर अरजाल यहाँ पहुंच गया तो वो न सिर्फ उसे बचा लेगा, बल्कि राव शमीद को भी इसके अंजाम तक पहुंचा देगा। और यशला की यही मुस्कुराहट राव शमीद को जहर लग रही थी। इसका गुस्सा बढ़ने लगा था जिसने पहली बार यशला के ऊपर हाथ उठाया था। राव शमीद का भारी हाथ यशला के गाल पर निशान छोड़ चुका था। बहुत हंसी आ रही ने मेरी बर्बादी पर, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ और तुम मुझ पर ही हंस रही हो। राव शमीद गुस्से से आगे बढ़ती यशला का मुंह दबोचा था कि तनवीर ने आकर अरसाल पाशा को क्या आने की खबर दी थी। आ गया तुम्हारा आशिक, पहले तो मैंने तुम दोनों को जाने देना था, लेकिन अब तुम्हारे सामने तुम्हारे आशिक को मारूंगा, उसके मुंह पर टेप लगा दो। राव शमीद ने अपनी शर्ट के कप को फोल्ड करते कहा और कुर्सी का रुख दरवाजे की तरफ कर लिया था, जिससे कुछ फासले पर एक छोटा टेबल मौजूद था। अरसाल पाशा चेहरे पर घबराहट लिए अंदर दाखिल और सामने अपनी मदारजाह को देखकर इसकी जान में जान आ गई थी, लेकिन अगले ही पल इसका खून कॉल उठा था जब इसने यशला के चेहरे पर उंगलियों के निशानात देखे थे। और वो वही जब्त की इंतहा पर था। वही यशला की आंखें मुस्कुराहट से चमक उठी थी। उसे थप्पड़ का दर्द भूल गया था और उसे यकीन था कि अरजाल पाशा उसे यहाँ से बचा लेगा। वही अरजाल ने सोच लिया था कि उसे भी जोश से नहीं होश से काम लेना था। वो जो बंदोबस्त करके आया था उसके जरा सी भी जज्बातीपन से सब खराब हो जाना था। तुम्हें देखकर खुशी नहीं हुई मिस्टर पाशा? तुम वो वाहिद शख्स हो जिसे मैं देखकर कभी खुश नहीं हो सकता। राव शमीद ने टांग पर टांग रखते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अरसाल पाशा किस तरह बात करने पर राव शमीद का कहका बुलंद हुआ था, बस ये आदत तुम्हारी मुझे पसंद है, फौरन काम की बात पर आ जाते हो। तो चलो काम की बात करते हैं, बस तुम्हें कुछ पेपर साइन करना होंगे। राव शमीद ने कहते हुए तन्वी की तरफ इशारा किया, जिसने फौरन से पहले एक फाइल मेज पर रखी थी और साथ ही यशला की तरफ पढ़ते हुए उसकी गनपटी पर पिस्टल रख दी थी। और वहीं अरसाल पाशा तड़प उठा था, ये कौन सी फाइल है और कौन से पेपर थे। अरसाल पाशा ने आगे बढ़ते फाइल खोली तो इसकी हैरत से आंखें फैल गई थी और ये तो जानता था कि यशला को अगवा करने के पीछे राव शमीद का कोई बड़ा मकसद है, लेकिन वो इस हद तक सोच सकता है वो ये नहीं जानता था। तुम चाहते हो कि मैं अपनी पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दूं, सियासत छोड़ दूं और जो सबूत मैंने अदालत में दिए हैं, जो केस तुम पर किए वो वापस ले लूं और साथ ही एक माफीनामा फिर दस्तखत करूं? कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे तुम? अरजाल पाशा ने फाइल बंद करते राव शमीद की तरफ देखा। नहीं कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी से ज्यादा तो नहीं। राव शमीद की बात पर अरजाल पाशा आगे बढ़ा था, वहीं अयशला ने फौरन अपनी में सर हिलाते उसे रोका था। अरजाल पाशा ने यशला की तरफ देखते अपने कदम वहीं रोक लिए थे। और अगर मैं साइन ना करूँ तो? अरजाल पाशा ने दांत चबाते हुए गुस्सा जब्त किया था। तो फिर तुम ना तो अपनी बीवी को जिंदा देख सकोगे, ना ही अपने बच्चे को। जितने पेपर्स पर तुम साइन नहीं करोगे, इतनी ही गोलियां मैं यशला के पेट में उतारूंगा। अब ये तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है, बीवी बच्चा चाहिए ओहदा चाहिए। राव शमीद अब थोड़ा आगे झुक कर बैठ गया। अरजाल पाशा ने गहरी सांस भरते यशला की तरफ देखा, जिसकी आंखों से बांसू निकल रहे थे। और वही अरजाल पाशा बेबस हो गया। बस इतना ही राव शमीद, अगर तुम मुझसे यशला के बदले पूरी दुनिया भी मांग लेते तो मैं वो भी तुम्हें देने को तैयार हो जाता। ये ओहदा ये पैसा तो कुछ भी नहीं। और रही बात तुम्हारे केसेस की, तो कभी ना कभी तो तुम्हें अपने की सजा मिलकर ही रहेगी। अरसाल पाशा की बात पर राव शमीद के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। अरसाल पाशा ने एक तंज का तमाचा उसके मुंह पर दे मारा था और वहीं अरसाल पाशा ने एक के बाद एक करके सारे पेपर साइन कर दिए थे। और राव शमीद सब कुछ हासिल करने के बाद भी बेचैन था। शायद इसके दिल में कहीं ना कहीं यही ख्वाहिश जागी थी कि वो भी अशला के लिए इतनी हिम्मत रखता, लेकिन अगले ही पल इसने अपने दिल के जज्बात को मिट्टी तले दफन करते हुए कुर्सी के बैक से टेक लगाकर बैठ गया था। मैंने साइन कर दिए, अशला को मेरे हवाले कर दो। अरसाल पाशा की बात पर शमीद के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने अपने बंदे को फाइल लाने का कहा और फाइल उठाते हुए आज शमीद के पास आया था। गुड, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी यशला नहीं दूंगा। आखिर वो भी मेरी मोहब्बत रह चुकी है और मैं तुम्हारा गरूर भी तो तोड़ना चाहता हूँ, जिसके बलबूते पर तुम मुझसे हमेशा बाजी ले जाते हो। राव शमीद ने कहते हुए तनवीर की तरफ इशारा किया था और वो यशला के हाथ पांव खोलकर उसे राव शमीद से कुछ फासले पर लाकर खड़ा कर दिया। पिस्टल वहीं कनपट्टी पर थी और मुंह पर टेप वैसी ही लगी थी और यशला के दोनों हाथ तनवीर की गिरफ्त में थे। और अब सीन कुछ यूं था। यशला राव शमीद के दाएं कंधे की तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ राव शमीद कुर्सी पर टांग रखे बैठा था
और इसके बिल्कुल सामने अरजाल पाशा खड़ा था। अब क्या चाहते हो तुम? अरजाल का जवाब देके उसकी नजर बेख्तियार कलाई पर बंधी घड़ी पर गई थी। उसे इंतजार था तो सिर्फ यशलास के पास आने का। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर कहना होगा कि तुम्हें तुम्हारी सो कॉल्ड दुनिया वापस कर दो। तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। राव शमीद की बात पर यशला तड़प उठी थी। पहले ओहदे से मुस्तफा और अब घुटने टेकना। यशला रोते हुए बार पर नफी में सर हिला रही थी। वो कहाँ अपनी मोहब्बत को इतना झुका हुआ देख सकती थी, वो भी इस इंसान के सामने जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही अरजाल पाशा अपने हाथ की मुट्ठी कोसे से बंद की थी। गर्दन को थोड़ा बल देकर उसने गहरी सांस ली थी और आज अरजाल पाशा ने राव शमीद के सामने घुटने टेक कर मोहब्बत की नई मिसाल कायम कर दी थी। वो शख्स जिसके इख्तियार में सब कुछ था, वो अपना सब कुछ लौटाकर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए घुटने टेक चुका था। और वही राव शमीद का दिल एक बार कांप गया था। इतनी मोहब्बत भला कौन कर सकता था? सब अमीर अरजाल पाशा के। और वही राव शमीद ने तनवीर को यशला को छोड़ने का कह दिया था। मुंह से टेप उतरते खुद को आजाद पाकर यशला अरजाल पाशा की तरफ बढ़ी थी और अरजाल पाशा ने उठते ही उसे गले से लगाया था। आपने ऐसा क्यों किया? यशला रोते हुए कह रही थी। मैंने वो किया जो मुझे बेहतर लगा। आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने आपके साथ ये सब किया वो आप पर हाथ उठाया। इसकी भूल है कि वो बच जाएगा। अरजाल पाशा ने कहते अपनी घड़ी का बटन दबाया था और साथ ही पुलिस दरवाजा तोड़ते अंदर दाखिल हो गई। पुलिस के साथ एजेंसी के लोग भी थे। राव शमीद इस अचानक हमले पर अपना दिफा नहीं कर पाया और देखते ही देखते पुलिस ने राव शमीद और तनवीर को इसको बंदूक समेत पकड़ लिया था। बड़ी खुशफहमी थी तुम्हारी राव शमीद के, मैं तुम्हें हर चीज माफ कर दूंगा। अरजाल पाशा ने जमीन पर पड़ी फाइल उठाकर इसके एक एक पेपर को राव शमीद के सामने फाड़ दिया था। अक्सर वही राव शमीद गुस्से से लाल होता, खुद को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करनी भी आती है और अपना ओहदा भी संभालना आता है राव शमीद, क्योंकि मैं मीर अरजाल पाशा हूँ जिसके अपने कानून है, अपनी अदालत है। अब जाओ सड़ो जाकर काल कोठरी में, तब तुम्हें एहसास होगा कि लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। अरजाल पाशा ने कहते हुए इशला के कंधे पर हाथ रखते हुए जाने के लिए मुड़ा ही था कि पलट कर राव शमीद की तरफ देखा जो गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। और हाँ, वो दरअसल मेरी बीवी ने ख्वाहिश की थी कि वो तुम्हें फांसी के तख्त पर देखना चाहती है, तो मैं कैसे अपनी बीवी की ख्वाहिश को रद्द करता? आखिर शौहर के भी कुछ फराइज होते हैं। अरजाल पाशा की बात पर राव शमीद गुस्से से आगे बढ़ा था और वहीं पुलिस वालों ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे गर्दन से पकड़ते बाहर ले गए थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार बाहर आ जाओ, देखना मैं क्या करता हूँ। मैं राव शमीद हूँ जो कानून को पांव तले रखता है। पुलिस वैन में बैठते राव शमीद पागलों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा था, लेकिन अब परवाह किसे थी। अरजाल पाशा ने अपनी बास्केट उतार कर यशला के कंधों पर दी थी। आप ठीक है ना? भूख तो नहीं लगी? यकीनन लगी होगी, इतने घंटे कुछ खाए पिए बगैर गुजार लिए आपने। मैं तो हैरान हूँ, चले कुछ खा लेते हैं। अरजाल पाशा की बात पर यशला के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने नाजुक हाथ की मुट्ठी बनाकर अरजाल पाशा के सीने पर मारी थी। आप बहुत अच्छे हैं। यशला के मुंह से अपने लिए सुनकर अरजाल पाशा ने दिल से दुआ की थी कि वो अच्छा ही रहे। अदालत ने राव शमीद को सारे सबूतों को मद्देनजर रखते यशला के वालिदैन को कत्ल करने, मॉडल नाज को कत्ल करने, अपने भाई को कत्ल करने के साथ यशला को अगवा करके इसके साथ हतक आमेज रवैया रखते और साथ ही करप्शन करने पर उसे सजाए मौत की सजा सुनाई थी, जो शायद इस जिसे शख्स के लिए कम थी, एक बार की मौत। राव शमीद कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। अगली सुबह उसे फांसी पर लटका देना था। तनवीर को राव शमीद के कामों में मदद करने पर उम्र कैद की सजा दी गई थी। काल कोठरी में जमीन पर बैठे राव शमीद अपने सीधे हाथ की उंगली से जमीन पर यशला का नाम लिख रहा था और साथ ही साथ मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। भाई ने ठीक कहा था, ये लड़की मुझे बर्बाद कर दी, इस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी तशनगी इश्कम ने मुझे बर्बाद कर दिया। और वहीं से सारी रात बस इसी बात को दोहराते हुए गुजारती थी। अगली सुबह राव शमीद को फांसी के तख्त पर लाया गया था और जब इसे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि तुम क्या चाहते हो, तो इसने हंसकर कहा, बर्बाद कर गई मुझे मेरी तशनगी, वरना मोहब्बत हम कमाल की करते थे। और फिर वो मुस्कुराते फांसी चढ़ गया। यशला उसे देखने नहीं आई थी। इसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो अपने इस मसीहा को फांसी पर देख सके, जिसने इसकी जिंदगी को बर्बाद कर कर आबाद किया था। 4 साल बाद एयरपोर्ट पर रश पड़ गया था। लोग फ्लाइट लैंड करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जा रहे। जब अनीस ने पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर कदम रखा था, और वो भी ऐसे मौके पर जहां वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। सरदार मीर अकबर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और वो उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आया था। उस शख्स को आखिरी बार देखना चाहता था जिसकी वजह से आज तक वो नूर फातिमा की यादों से बाहर नहीं निकल पाया था। सरदार मीर अकबर की वफात को गुजरे 1 माह हो गया था। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और ना ही किसी के मर जाने से कोई मर जाता है, पर जिंदगी जीने के तरीके जरूर बदल जाते हैं। और यही सब कुछ मेरे खानदान में हो रहा था। सब अपने अपने गांवों में मसरूफ थे। आज 1 माह बाद अनीस दोबारा अमरीका जा रहा था और अरजाल पाशा ने अनीस और सबको अपने घर दावत दी थी। अरजाल पाशा इलेक्शन जीत चुका था और अब मुल्क के साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा रहा था। अनीस जैसे ही अरजाल पाशा के घर में दाखिल हुआ, 2 साल की शान से लड़खड़ाती हुई अनीस की टांगों से चिपक गई थी। मामू मामू छोटे छोटे लफ्ज अदा करते हुए अनीस से अपनी मोहब्बत जता रही थी। अनीस, तुम आ गए? अरजाल पाशा ने अपने 4 साल के बेटे मीर दानियाल
पाशा को उंगली से पकड़ते इसी की तरफ आ रहा था। अल्लाह ने अरसाल पाशा और यशला को पहली औलाद बेटे के बाद एक प्यारी सी बेटी शान से नूर अता की थी, और वही दो बच्चे पूरी मीर हवेली की जान बने हुए थे। शाज़े बेगम तो अब बस इनको देख कर जीती थी। मामू की जान अनीस ने कहते शांसी को गोद में उठाया था, फिर अरजाल पाशा के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ा, जहाँ सारे मौजूद थे। जावेद को नई जिंदगी मिली थी। इसने सानिया से शादी कर ली थी, जिस पर यशला बहुत खुश थी, और अरजाल पाशा ने कभी सानिया का राज यशला पर नहीं खोला था। वो नहीं चाहता था कि यशला का दोस्ती से एतबार उठ जाए। यशला ने नासी और बुआ जी के साथ मिलकर हर तरह के खाने बनाए थे, और सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। यशला ने सब पर एक नज़र डालते अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि उसे अल्लाह ने इतना प्यार और इज्जत देने वाला हमसफर अता किया था, और साथ मोहब्बत और अपनाई देने वाली फैमिली भी सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। जब अरसाल पाशा ने यशला के हाथ पर हाथ रखते इसकी तरफ देखा, मेरी तशनगी इश्क कम भूख नहीं लगी आपको? और वही यशला के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी, और दूर कहीं खिड़की के पार चांद शर्माता हुआ बादलों की ओर में छुप गया था। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी हुई। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये कहानी का लास्ट पार्ट था। कहानी ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।